Okay, and let's start today's session. The concept which we will study today is related to the process. What are the various process states? What is the information related with the PCB, which is known as process control block, and other related information. Okay, one of the student has joined. Manisha Kumari. Okay, good morning, Manisha Kumari. Kindly inform your classmates to join the class. Mhm. So, good morning to all of you. In the previous session, we have completed all the information related with the CPU scheduling. Does I want to ask one simple question to all of you. Do you have any kind of problem or query related with this concept or related concept which we have studied till now? Okay. Okay, we got a response via the chat box. Smriti Rupam has responded that she has not. Okay. Okay, Smriti. So we will wait another 2 minutes so that your classmates can join today's session on time. And in the meantime, if you have any kind of query, then you can ask related with the topic which we have completed till now. Okay, so it means that you have no query related with previous sessions. So, okay, uh, let's start today's session. Today, we will study about all the concept related with the process. Okay, we will study all the concept related with the process. What is process? What is the need of the process? What are the various states of the process? What is the PCB? How we are, what kind of information are stored in PCB and how it helps.
Okay, so let's move further. The first question is, does anyone know about these terms? We have a term known as program, and we have a term known as process. Does anyone have any kind of knowledge about these two things? Any kind of prior knowledge do you have? We will discuss, but if you have any kind of knowledge, then kindly share with us. And I'm strictly telling you students, those who are not joining the classes without any kind of information, they will punish, because as I informed you earlier that if you will not have 75% attendance, then it will be severely uh, disastrous situation for all of you. No, not for all of you, but for them who are not joining the classes. Each and every day I'm taking records that who are attending the classes. If you have any kind of problem, then kindly inform me prior, so that I can consider. आप एंड में आएंगे और मुझे ये बताएंगे कि मेरे पास सच एंड सच प्रॉब्लम था, then I will not listen. If you have any kind of problem, kindly share with me. I think you have a Google Classroom, you have WhatsApp group, you have my mail ID. By any kind of communication, you can meet with me, but I need prior information that why you are not attending classes. Constantly, I am seeing that only few of you are joining classes. A total strength of you have 60, but at max I have seen 25 student or 30 student at max. Today I have to tell this because I have seen this in the continuous fashion that only few of you are joining the classes. They will heavily punished. Okay, so let's continue with our session. Kindly inform your classmates that sir is telling this. And it is from tomorrow onwards, after 8:10, I will not allow to join the classes. ये कोई खेल नहीं चल रहा है कि रोज सर इन्फॉर्म करेंगे कि क्लास करो, आपके क्लासमेट्स आपको इन्फॉर्म करेंगे कि क्लास स्टार्ट हो चुका है. ऑल ऑफ यू आर young enough to know that the class timing is 8 o'clock. at max मैं 8:10 तक अलाउ करूंगा, उसके बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा. Enough is enough, student. I am giving my best. I am doing each and everything so that you can get benefited. But I have seen that you are taking it as a granted. Kindly do your, or you also give your 100%. आपको सिर्फ क्लास ज्वाइन करना है, बैठ के पढ़ना है, हमें पढ़ाना होता है. Even in the holiday I am doing working for you, so that you will get all the videos. We have video lectures. I have working constantly. Even in the holiday I was working. But आपको थोड़ा सा भी नहीं है कि क्लासेस ज्वाइन करें, हम कुछ बेनिफिट लें. सो आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम आपका 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो यू विल गेट पनिश्ड. आइदर मैं आपको अलाउ ही नहीं करूंगा इसका मिड सेम देने के लिए, या आपको एंड सेम में बैठने के लिए, या प्रैक्टिकल में बैठने के लिए. आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए मेरे सब्जेक्ट में. और एक बात और कि आपको 8-10 तक मैं अलाउ करूंगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, इसके बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा. मैं देख रहा हूं कि मैं व्हाट्सएप पे भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि क्लासेस हैं ज्वाइन कीजिए. क्या ये टीचर का वर्क है कि आपको रोज बताए कि क्लासेस है?
और आपको जो असाइनमेंट के लिए ड्यू डेट दिया गया है, ड्यू डेट से पहले असाइनमेंट सबमिट कीजिए। आइदर आपको आपका असाइनमेंट अगर आप ड्यू डेट के बाद सबमिट करते हैं, दैट विल नॉट इवेल्युएटेड एट ऑल। एक भी असाइनमेंट इवेल्युएट नहीं किया जाएगा आफ्टर ड्यू डेट के बाद। आपको ड्यू डेट गिवन है लैब असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, आप उसका ड्यू डेट से पहले सबमिट कीजिए, नहीं तो मैं असाइनमेंट जिनका भी ड्यू डेट के बाद होगा मैं इवेल्युएट नहीं करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज आस्किंग दैट अबाउट हैव यू prior knowledge related with the program or related with the process. I think all of you have a knowledge about at least program के बारे में तो knowledge होगा आपको कि program क्या होता है। और आप सभी ने, क्योंकि now you are in a fourth semester, till now आपने C या C++ ये सब सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, इवन आप ऊप्स भी पढ़ चुके होंगे। सो आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या प्रोग्राम क्या होता है। जैसे कि आप सी में कोई कोड करते हैं और उसको स्टोर करते हैं एज अ आई एम गिविंग इट अ नेम एज अ print100.c। ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ प्रोग्राम। दिस इज अ प्रोग्राम जो हम लिखते हैं ना, जैसे हैश इंक्लूड studio.h, hash include conio.h, int main, तो ये और ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोग्राम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। व्हेन दिस प्रोग्राम, आप इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ओके, कंपाइल करते हैं तो ये प्रोग्राम क्या होता है, इवैल्यूएट होता है। और आप उसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो दिस प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन। सिंपली समझ लें, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है, सिंपली एक पैसिव पार्ट होता है, एक पैसिव पार्ट होता है। और प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, ये एक्टिव पार्ट होता है। ओके, गेट इट। जब आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तब इसको कहा जाता है प्रोसेस। तो सिंपली कहा जाए तो आपका जो प्रोग्राम होता है दैट इज अ पैसिव पार्ट एंड प्रोसेस इज अ एक्टिव पार्ट। गेट इट? ओके, सिंपली समझा जाए, अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा जाए तो आप सिंपली कहेंगे कि प्रोग्राम इज बॉडी एंड प्रोसेस इज सोल। बॉडी का आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सोल का फिजिकल एग्जिस्टेंस अभी तक कहा जाए सिंपली तो नहीं होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह से प्रोग्राम का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, प्रोसेस का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इट इज अ लॉजिकल। ओके, बिना सोल के आपका बॉडी का कोई मतलब नहीं है, दैट इज अ डेड। and without body soul cannot exist। so बिना प्रोग्राम के प्रोसेस आप नहीं बना सकते हैं, और अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं करवा रहे हैं तो प्रोसेस बनेगा नहीं। तो अगर किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट इट इज अ यूजलेस। so these are various concepts related with the program and process।
Can we move forward? Okay. So now in this particular chapter, we will study about the process definition, what is the process scheduling process, how we can schedule that, how process do in a system, what is the inter-process communication. We will study about this part in a detail. Actually, we have a separate module for the inter-process communication. So these are the highlights of this current topic. So coming into the definitions, we was talking about process concept. To process, a program is passive, a process is active, as I told you. Now बिकॉज आपका क्या है, प्रोसेस है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस नीड्स सर्टेन थिंग्स, सो इट हैड टू स्टोर सर्टेन information, or it can be called as an attribute which is held by process. And these attributes are, what is the various hardware state, what is the memory it is required, or at which memory part it is working, what is the CPU utilization it is required, and whether it is executing or not, whether it is in execution or not. Okay. Now, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, each and every process held with them, and data structure which helps it to hold this information is known as PCB, and it is abbreviated as process control block. PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. याद रखिएगा स्टूडेंट, कभी पूछा जाए व्हाट इज पीसीबी, तो यू हैव द इंफॉर्मेशन दैट इट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर टू होल्ड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द process. And which kind of information it holds? It holds the information like what are the hardware state, what is memory, what is CPU utilization it have, whether it is executing or not, और भी information होते हैं. We will study that in the PCB. Okay, so now why we have process, why it is required to have a process? When we have a program, then why it is needed a process? Because process helps us for the resource sharing. रिसोर्स जो है, जैसे कि रिसोर्स है हमारे पास, वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस, लाइक वी हैव सीपीयू, वी हैव मेमोरी, वी हैव प्रिंटर, we have disk, we have various kinds of resources in a system. Okay, and process helps us to share this process. And as you know that if we are sharing, then the utilization will be increased. Okay, because we can do the parallel एग्जीक्यूशन. आप शेयर कर रहे हैं, इट मींस कि जब एक प्रोसेस को सीपीयू का रिक्वायरमेंट होगा तो वो सीपीयू के पास जाएगा. अब वो ब्लॉक नहीं कर सकता है. प्रोसेस एक्स को अगर सीपीयू का रिक्वायरमेंट है, तो प्रोसेस वाई को अगर मेमोरी का रिक्वायरमेंट है, then process X will not block the process Y to use this memory. Okay, so here it is a concept of resource sharing. And if we, because you know that per unit time में जितने process execute हो पाएंगे, that will be known as throughput. And if we are doing the parallel execution, then the throughput of the system will increase, because number of process which will be able to complete in a per unit time will be increase.
Okay. Am I clear to all of you, student? Do you have any kind of query related with topic till we have studied? Okay, we got a message that I'm okay. So आप रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं. इससे क्या होगा? रिसोर्स आपका आइदर हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकता है, जो अभी हम डिस्कस किए, या फिर आपके फाइल्स हो सकते हैं, जो कि जैसे कि प्रोसेस के पास क्या होता है, प्रोग्राम के पास क्या होता है, वी कैन यूज द मॉड्यूलैरिटी कॉन्सेप्ट. आप क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं. अब इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन आपका बनाया गया है, आप चाहे तो वेरियस प्रोग्राम्स में इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो इट कैन बी आइदर इट कैन बी फॉर्म ऑफ अ लॉजिकल और इट कैन बी फॉर्म ऑफ द फिजिकल. प्रेम प्रकाश was asking what throughput का definition. Okay, प्रेम, I'm telling you throughput क्या होता है, number of process completed in per unit time is known as throughput. Number of process completed in per unit time is known as throughput. ठीक है. Either it can be termed as a efficiency, and we have seen this particular concept in the CPU scheduling. And अगर और रिफाइंड वे में बात करें तो वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट इन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया. we studied this concept in scheduling criteria throughput. Am I clear to you, Prem Prakash? Did you got the concept of throughput? So now moving forward about what it can increase the computation speed, because as I told you that if we have even a single process we have, then we can do the multi-programming. We can do the multi-programming, and via this multi-programming or via this you can have multiple programs in the ready queue ready for execution. And if a process is in the CPU, then if it is needed any kind of input output work, then it can jump in its own और सभी के हो सकते हैं, अलग अलग भी आपके इनपुट आउटपुट क्यू हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सबका सबमर्ज्ड हो सकता है. तो ये क्या होगा, जब इसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या होगा, इनपुट आउटपुट क्यू में चला जाएगा. And other process from the ready queue will be selected and given to the CPU. So via this mechanism we can speed up the computation. We can speed up the computation because एक आपका प्रोसेस क्या है, आपका इनपुट आउटपुट क्यू में वर्क कर रहा है और एक प्रोसेस आपका सीपीयू में वर्क कर रहा है. तो इस तरह से रिक्वायरमेंट ऑफ सेवरल प्रोसेस कैन बी completed at the same time. Okay, so this is the scenario. Okay, Prem Prakash, I think you have got the concept. So this is the how we can speed up the process, taking advantage of multi-programming. That is example of customer server database. आप modularity for the protection कर सकते हैं. So this is all about process. Now we will study about dig deep into the process, and we will study about what are the various process states and what is the meaning of that. And I think we have seen this concept little bit in the CPU scheduling also, because I want you to know about what are the various states, what is about the concept related with the ready
or new or running or exit or waiting. Okay. Again, we will move it quickly and complete this. So we have various states. We have new and new state. In the new state the process is just being put through. मतलब कि आपका न्यू स्टेट सिंपली अगर आप कोरिलेट करना चाहेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग से, तो हम जो अराइवल टाइम पढ़ते थे दैट इज आपका फर्स्ट टाइम जब आपका क्या हुआ है, प्रोसेस आपका क्रिएट हुआ है, प्रोसेस अभी आपका क्रिएट हुआ है, तो आपका कहलाएगा इट इज इन अ न्यू, इट इज इन अ न्यू। ओके, आपका न्यू हो चुका है, प्रोसेस आपका न्यू स्टेट में आ चुका है। इट मींस प्रोसेस जब आपका क्रिएट हुआ है तो ये आपका न्यू स्टेट में आया है। देन वी हैव हम इसको वाया द डायग्राम भी देखेंगे। वी हैव रनिंग स्टेट, वी हैव रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट इट मींस कि वी हैव, आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम में क्या होता है, वी हैव वेरियस इंस्ट्रक्शन, प्रिंट कीजिए, या फिर आपका इफ ए इज ग्रेटर देन बी है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे स्वैपिंग कीजिए, आप a इज इक्वल टू ए प्लस बी कीजिए, b इज इक्वल टू ए माइनस बी कीजिए। तो वी हैव वेरियस इंस्ट्रक्शन and all the instruction in the micro level, if you will see that within the instruction we have to do so many tasks. Okay, so आपका जब ये कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन होता है तो then it is called as running. Okay, this running process hold the CPU. This running process hold the CPU. Now अब अगर कोई प्रोसेस जैसे कि रन कर रहा था तो उसको नीड हुआ, कुछ हो सकता है इट हैज नीडेड द हार्डवेयर, या हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर लाइन में उसका दिया था कि स्कैनएफ करवाया, तो in that particular line it needs the human intervention, that human will provide the value. So और या फिर हो सकता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटरडिपेंडेंट हो, तो वहां पे अनदर प्रोसेस का ये वेट कर रहा हो, तो देयर कैन बी सेवरल इश्यूज रिलेटेड विथ अ प्रोसेस टू कम इनटू द वेटिंग स्टेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ इट विल नीड सर्टेन काइंड ऑफ अटेंशन from either from the hardware or from the human or from the other process, then आपका क्या होगा, प्रोसेस को हम वेटिंग स्टेट में लेके जाएंगे। ठीक है, और वेटिंग स्टेट में प्रोसेस तभी आता है जब वो पहले इन एग्जीक्यूशन हो, इट मींस रनिंग स्टेट में हो। कभी भी आपका रेडी स्टेट से डायरेक्टली वेटिंग स्टेट में नहीं आ सकता है। जब भी कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आएगा तो वो कैसे आएगा कि वो पहले रनिंग कर रहा होगा। ठीक है, रन कर रहा होगा तभी उसको पता चलेगा कि देयर इज नीड ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इंटरवेंशन। ओके, सो नाउ this is all about waiting state. Now next state is ready state. So the process has all the needed resources. Okay, it means जैसे आपका प्रोसेस अराइव हो गया, अराइव होने के बाद इसने सारे जो नीड थे वो अपने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इट मींस कि हो सकता है कि इसको क्या हो, इसकी अगर हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कर रहे हो तो इसकी प्रायोरिटी अब क्या हो गई, मैच कर गई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, हो सकता हो कि इट इज नीडेड सर्टेन काइंड ऑफ मेमोरी, it needed certain kind of value,
सो अगर वैल्यूज लाइक आपका वेटिंग स्टेट से भी तो प्रोसेस आपका रेडी स्टेट में आ सकता है। ओके आपका वेटिंग स्टेट से भी प्रोसेस आपका रेडी स्टेट में आ सकता है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इफ इट नीडेड समथिंग एंड इट्स नीड is completed, then a process can come into the ready state. तो ये तो हो गई कि वेटिंग स्टेट से सुमित इज टेलिंग दैट सर वेटिंग स्टेट वंस अगेन एक्सप्लेन कीजिए। तो ओके सुमित आई एम टेलिंग यू वेटिंग स्टेट क्या होता है। आपका वेटिंग स्टेट एक उस टाइप का स्टेट है जहां पे कि प्रोसेस जब रनिंग कर रहा होता है तो रनिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन there is a need of a process and these need can be any type, whether it is needed for the input output, whether it is needed certain kind of hardware. It means that मुझे प्रिंट करना है, मेरे प्रोग्राम को प्रिंट करना है कुछ, तो it need the printer. Then in that case it come into the input output queue of the printer, or it can be needed certain kind of input from other process also. So in that case आपका क्या होगा, प्रोसेस जो होगा वो रनिंग स्टेट से आपका क्या होगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। इनपुट आउटपुट और इवेंट के लिए वेट कर रहा होगा तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। और जैसे ही इसका रिक्वायरमेंट जो इसको नीडेड था, अगर इसको प्रिंटर का नीड था या फिर इसको स्कैनएफ किया गया था तो ह्यूमन का रिक्वायरमेंट था, ह्यूमन इसको वैल्यू प्रोवाइड करे, या फिर अनदर प्रोसेस का रिक्वायरमेंट था, जो भी इसका रिक्वायरमेंट था, जैसे ही इसका रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा, इवेंट कंप्लीशन हो जाएगा। तो ये अपना स्टेट फिर से चेंज करेगा और वेटिंग स्टेट से क्या होगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द वेटिंग स्टेट। नाउ वी वाज am I clear to you Sumit? Am I clear to you that what is the waiting state? Yes sir, clear. ओके नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रेडी स्टेट। तो रेडी स्टेट क्या होता है कि जब भी आपका, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही आपका सारा जो नीड होगा वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या होगा, प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाएगा। या फिर जब पहली बार जब एक न्यू प्रोसेस जो न्यूली बेबी था, न्यूली आपने अभी नया नया प्रोग्राम बनाया था, उसको अभी आप कंपाइल कर रहे थे, उसको रन जैसे ही किए, तो जैसे ही आप रन किए तो वो क्या हो गया, आपका आपका वो क्या होगा, स्टेट चेंज करेगा और आपने न्यू से क्या हो जाएगा, अब वो अराइव कर जाएगा इन द रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन। फर्स्ट टाइम जब आपका कोई भी प्रोग्राम आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए डालेंगे, तो वो क्या होगा, अपना न्यू से क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम वो एडमिट हो जाएगा किसके लिए, रेडी के लिए, कि नाउ आई वांट द सीपीयू। ओके एंड व्हेन ऑल ऑफ इट्स नीड आर कंप्लीटेड, लाइक शेड्यूलिंग क्राइटेरिया अगर मैच करेगा तो इसको डिस्पैचर, मैं डिस्पैचर के बारे में पहले ही आपको सीपीयू शेड्यूलिंग में बता चुका हूं कि व्हाट इज डिस्पैचर। ठीक है, तो आपका जैसे ही ये अपना शेड्यूलिंग क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो इसको डिस्पैचर क्या करेगा, डिस्पैचर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेके चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडी स्टेट। ओके सो सभी को रेडी स्टेट समझ में आया? यस सर। ओके नाउ देखिए एक अदर स्टेट होता है विच इज नोन एज सस्पेंडेड स्टेट। इसमें दिखाया नहीं गया सस्पेंडेड स्टेट, बट वी हैव द सस्पेंडेड स्टेट। तो अनदर प्रोसेस हैज एक्सप्लिसिटली टोल्ड द प्रोसेस टू स्लीप। ओके एक्सप्लिसिटली क्या किया, एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को बोला कि तुम नहीं, अब तुम अपना जो एग्जीक्यूट कर रहे हो सीपीयू के अंदर में, तुम सीपीयू को लीव करो। ऐसा आप कहां देखे हैं, ऐसा आप सभी देख चुके हैं
यस आपने सर, प्रायोरिटी में भी देखते हैं हम लोग। प्रायोरिटी में भी देखते हैं, जो भी प्रिमिटिव टाइप के होते हैं ना शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव टाइप की शेड्यूलिंग होते यस हैं, सर। वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस को बोलते हैं कि नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू लीव द सीपीयू। ओके, तो आप क्या करें, स्लीप हो जाएं, ठीक है। तो सस्पेंडेड वो स्टेट होता है जिसमें होता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को एक्सप्लिसिटली, फोर्सफुली वो क्या करता है, सीपीयू से बाहर लेके चला जाता है और वो स्लीप स्टेट में चला जाता है। इट विल बी अवेकेंड व्हेन अ प्रोसेस एक्सप्लिसिटली अवेकन्स इट। जैसे ही आपका जो प्रोसेस था जिसने इसको सस्पेंड किया था, वो अब इसको इन्फॉर्म करेगा कि नाउ यू कैन डू द प्रोसेसिंग अगेन। सो वो क्या करेगा, अवेकन होगा, जागेगा, और वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। सो बहुत स्लाइड में बहुत ज्यादा ही राइटिंग हो गई है, सो आई एम क्लियरिंग दिस। नेक्स्ट इज टर्मिनेटेड स्टेट। तो टर्मिनेटेड स्टेट क्या होता है, जब प्रोसेस अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या करता है, सिस्टम को लीव कर देता है, एग्जिट हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, द प्रोसेस इज इन द टर्मिनेटेड स्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस स्टेट। ओके, सभी को समझ में आया व्हाट इज प्रोसेस स्टेट एंड व्हाट इज ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द प्रोसेस स्टेट? ओके, चलिए। तो अब नाउ वी वाज, अब प्रोसेस इतना सारा काम करता है तो प्रोसेस नीड्स सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो कि ओके, ओके, सभी को समझ में आ गया है टिल नाउ वी व्हाट वी हैव स्टडीड। सो प्रोसेस इतना सारा काम करता है, इतना सारा एग्जीक्यूशन करता है, किसी को इंटरप्ट करता है, वेटिंग स्टेट में चला जाता है, न्यू से रेडी में आता है, रनिंग से आपका एग्जिट स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ memory or data structure to hold the information related with the process. And this data structure, this is a data structure, हमेशा याद रखिएगा, it is a data structure to hold the information related with the process, क्योंकि process contains information associated, जो आपका प्रोसेस होता है वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जिसको कि हम क्या करते हैं, पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं प्रीवियस स्लाइड से बताना चाहूंगा कि जो भी प्रोसेस होता है ना, आइदर इट इज स्मॉल और लार्ज और मीडियम, इसका नीड कितना है, क्या है, जो भी प्रोसेस होता है एटलीस्ट वो एक बार रनिंग स्टेट में तो आता ही आता है। डायरेक्टली आपका कोई भी प्रोसेस रेडी से क्या होगा, एग्जिट स्टेट में नहीं चला जाएगा, ठीक है। इट विल एटलीस्ट कम वंस इन द रनिंग स्टेट, क्योंकि आपका टर्मिनेटेड स्टेट में जाने के लिए आपने देखा होगा वी हैव ओनली वन इंटरमीडिएटरी नोड विच इज रनिंग स्टेट। तो रनिंग स्टेट में तो किसी भी प्रोसेस को आना होगा, वेदर इट हैज ए स्मॉल नीड और लार्ज नीड, ठीक है। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन व्हिच आई वांट टू शेयर विद द प्रीवियस स्लाइड। सो नाउ कम ऑन, फोकस ऑन टू द न्यू स्लाइड। सो आपका जो प्रोसेस होता है दैट यूज द पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, to store the all the related information with the process. Now what kind of information it store? तो आपका पीसी प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यू है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, स्टोर्स द information about next instruction which is going to be executed. Okay, next instruction जो स्टोर, जो कि आपका एग्जीक्यूट होना है, उससे रिलेटेड उसका एड्रेस क्या है, वो क्या होता है, पीसी प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है, ठीक है। अभी जो मान लिया जाए अभी लाइन नंबर 14 वो एग्जीक्यूट कर रहा था कोई भी प्रोसेस,
तो नेक्स्ट अगर लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होना है तो इसका क्या एड्रेस है, लाइन नंबर 15 का क्या एड्रेस है। या हो सकता है कि जंप करना हो, लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 18 में जाना हो, तो इसका भी इंफॉर्मेशन क्या होता है, आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है उसका इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, so this is all about the program counter, one of the important part of PCB. Okay, so now move upon to the next information which is stored. आपका CPU का registers, आपका रजिस्टर्स होता है ना, वेरियस रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, या आपके जो भी AR हैं, आपके ऑक्सिलरी रजिस्टर हैं, या BR हैं, आपके ब्रांच रजिस्टर हैं, तो ये सारे जो भी आपके रजिस्टर्स होते हैं CPU के, वी हैव जनरली इन अ जनरल सिनेरियो वी हैव 16 जनरल पर्पस रजिस्टर इन अ सिस्टम। तो इन सारे के रिलेटेड मतलब इनकी वैल्यू क्या है, इनका लोकेशन क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन भी प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। ठीक है, मेमोरी का क्या रिक्वायरमेंट है, ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर होता है। इसको क्या ये टाइम यूज किया, मतलब इसने कितना टाइम इलैप्स्ड कर दिया सीपीयू में, इसका प्रोसेस आईडी क्या है, और भी जो इंफॉर्मेशन होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो भी स्टोर किया जाता है प्रोग्राम काउंटर में। इनपुट आउटपुट का क्या स्टेटस है, कौन कौन से इसको फाइल की रिक्वायरमेंट है, कितना को वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट स्टेटस से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं वो भी प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किए जाते हैं। शेड्यूलिंग से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं वो भी स्टोर किए जाते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी क्या है, टाइम स्लाइस की क्या वैल्यू है, प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, किस टाइप का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये सारा जो डेटा होता है ये भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। प्रोसेस का क्या स्टेट है, वी हैव सीन वेरियस स्टेट, तो ये भी जो प्रोसेस स्टेट क्या है वो भी आपका स्टोर किया जाता है प्रोग्राम, ये आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं, और ये एक काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर है। तो पॉइंटर्स की क्या वैल्यू है, ये आपका पीसीबी है। जब भी आपका डायग्राम बनाना हो पीसीबी का, you will try to memorize this thing that this stores holds in the program आपका किसमें, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। एंड दिस इज द डायग्राम, प्रोसेस का स्टेट क्या है, पॉइंटर्स की क्या वैल्यू है, आपका प्रोसेस का नंबर क्या है, प्रोग्राम काउंटर्स की क्या वैल्यू है, रजिस्टर्स क्या क्या होल्ड कर रहा है, ये मेमोरी लिमिट क्या क्या है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स क्या क्या है, और ऑल अदर इंफॉर्मेशन लाइक प्रोसेस का प्रोसेस से रिलेटेड प्रायोरिटी क्या है, किस टाइप की एल्गोरिथम यूज किए जा रही है, ठीक है, उसका सीपीयू का रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। ठीक है, now we are moving forward to the next slide. Okay, so here we will study about some of the related concept with the process again. तो जब आप the act of scheduling a process means changing the active PCB pointed by the CPU. ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी शेड्यूल करते हैं किसी भी प्रोसेस को, तो जो आपका एक्टिव पीसीबी होता है इससे रिलेटेड, उसमें क्या करते हैं, वैल्यूज चेंज होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, प्रोसेस स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, प्रोसेस स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, हो सकता है कि रिमेनिंग टाइम हो उसमें, या शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन रिमेनिंग टाइम भी चेंज होगा आपका। ठीक है, पॉइंटर की क्या क्या वैल्यू है आपकी, ये भी चेंज हो सकता है उसको इनपुट आउटपुट और इंफॉर्मेशन कहीं से रिक्वायर्ड हो,
तो ये भी वैल्यू चेंज होगी। तो जो भी एक्टिव पीसीबी होते हैं, जब भी आप शेड्यूलिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, दैट विल चेंज। ओके, so this kind of changes is called as, also called as context switching। जो आप गैंट चार्ट हम लोग बनाते थे उसमें क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे ना, एक लाइन ड्रॉ करते थे और बोलते थे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, अभी प्रोसेस 1 रन कर रहा था, अब प्रोसेस 2 रन कर रहा है। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मैंने ये पहले भी आपको बताया है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, अब चूंकि इतना सारा काम हो रहा है, मैंने बताया कि इतना सारा काम हो रहा है, आपका प्रोसेस स्टेट चेंज हो रहा है, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेंज हो रहे हैं, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेंज हो रहे हैं, तो दिस विल ऑल्सो विल टेक सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम। ओके, हो सकता है कि दिस विल ऑल्सो टेक 2 यूनिट ऑफ टाइम। तो आप, हो सकता है ना, ये आजकल जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ना सीपीयू शेड्यूलिंग से, उसमें ये भी बताया जाता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आपका 1 यूनिट का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपका जैसे कि प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 आपका क्या हुआ कि 0 से लेके 4 तक आपका प्रोसेस 1 रन हुआ। ठीक है, मैं एक सिनेरियो ले रहा हूं। तो अब इसको क्या होगा, ये गिवन है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम लग रहा है 1 सेकेंड का। ठीक है, तो 4 से लेके 5 तक क्या होगा, कोई वर्क नहीं होगा, क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। जो हम पहले सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देते थे, अब हमको अगर गिवन है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, तो वी विल ड्रॉ दैट ऑल्सो इन द गैंट चार्ट। तो ये आप क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, वेदर इट इज गिवन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम और नॉट। ओके, नाउ a context switching is essentially the same as process switching। ठीक है, जैसे कि आपका प्रोसेस स्विच करते हैं ना कि P1 से अब P2 होगा, तो इसी तरह से आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी होता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दौरान होता क्या है कि आपका जो पीसीबी होता है उसमें जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं कि प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यू है, आपका आपका शेड्यूलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो चेंज होता है। फिर आपका इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज होता है। तो इस तरह से आपका जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है ये भी एज अ प्रोसेस स्विचिंग ही होता है। ठीक है, कि पहले एक प्रोसेस रन कर रहा था, अब दूसरा प्रोसेस रन कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स दैट द मेमोरी as seen by one process is changed to the memory seen by the other process। और ये जो स्विचिंग की जाती है बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन की जाती है। ठीक है, स्विचिंग जो प्रोसेस का, एक प्रोसेस से अब न्यू प्रोसेस 1 रन कर रहा था, अब न्यू प्रोसेस रन करेगा, तो देयर इज अ नीड ऑफ इंटरप्ट सर्टेन काइंड ऑफ। अब शेड्यूलिंग क्यूज क्या क्या होते हैं, वी हैव सीन द शेड्यूलिंग क्यूज। हमारा रेडी क्यू होता है, ठीक है, आपका फिर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्यू भी होता है। तो आपका रेडी क्यू है, इनपुट आउटपुट क्यू है, तो दीज आर वेरियस शेड्यूलिंग क्यूज। तो देख लेते हैं, आपका रेडी क्यू होता है कंटेन्स दोज प्रोसेस दैट आर रेडी टू रन। वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग कि प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 5 है, इस टाइप से हमारे पास प्रोसेस यहाँ पे है। ठीक है, जो रेडी है। तो अब आप क्या करेंगे, among these all the ready process you will select, pick one process and give it to the CPU। okay, so ready queue होता है, input output queue होता है कि when a process is needed certain kind of information from input output devices, then it will jump into the ready queue। like process 3 आपका ready queue में आ गया और ये 11 से 15 तक यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ क्यूज आर यूज्ड फॉर द शेड्यूलिंग। आप जानते हैं कि हम क्यू का क्या यूज करते हैं। ठीक है, और क्यू को आप चाहें तो आप सिंगली लिंक लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आइदर आप इसको डबली लिंक लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर तो आप सभी ने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे।
So I think you know about what is this singly linked list or doubly linked list. Yes, sir. Okay. So now moving forward, what is the time? Okay. Now moving forward, next slide हम लोग आराम से complete कर सकते. Okay. Next slide needs certain kind of information. Uh, uh, आपने सुना होगा ना, we have interrupted in a general scenario. What is the means of interruption? हस्तक्षेप करना, जैसे सर कोई प्रोसेस चल रहा है ना, तो बीच में कोई हायर प्रायोरिटी का आ गया प्रोसेस, तो वो उसको Yes, very good. If अगर हस्तक्षेप सिंपली, अगर हिंदी में आप समझने की कोशिश करें तो हस्तक्षेप कर रहा है, बीच में रुकावट डाल रहा है कि अब आपको, जो आप एग्जीक्यूशन में थे, अब आप अपना एग्जीक्यूशन को रोकिए और मुझे चांस दीजिए, क्योंकि मेरा नीड है, मैं हाई प्रायोरिटी हूं. जैसे कि अगर आपका सिस्टम ओवरहीट हो जाता है, ठीक है, ओवरहीट हो जाता है तो सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता है. चाहे आप म्यूजिक देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो सिस्टम विल बी शट डाउन. ओके, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बर्नड आउट हो जाएगा और आपका फिजिकल डिवाइस क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपको. ओके, सो इन दैट केस वी विल नीड अ इंटरप्ट कि मेरी प्रायोरिटी हाई है तो मुझे आप पहले वर्क करने दीजिए. अब ऐसा होगा कि एक स्टूडेंट प्रोसेस एक इंटरैक्टिव प्रोसेस को वेट करने के लिए बोलेगा, तो दैट विल नॉट बी द फिजिबल कंडीशन. ओके, क्योंकि आपका जो इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है दैट हैज अ हाई प्रायोरिटी रिलेटेड टू द स्टूडेंट प्रोसेस. आपने वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोसेस पढ़े होंगे ना, हम लोग मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग पढ़े थे, आपको याद है स्टूडेंट्स? मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग हमने पढ़ा था, उसमें हमने स्टूडेंट प्रोसेस, इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, इस काइंड के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था. Yes, sir. यस सर. ओके, सो हम क्या करते हैं कि दोज प्रोसेस which has a higher priority than the currently running process, तो क्या करते हैं उस केस में, जो आपका प्रोसेस होता है वो via the help of interrupt service routine, वो क्या करता है, इंटरप्ट करता है करंटली रनिंग प्रोसेस को. और हाँ, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि इट मीन्स दैट कि अगर कोई प्रोसेस एक्स है जो कि रन कर रहा था, और प्रोसेस वाई ने क्या किया, आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एक्टिवेट किया, और ये इंफॉर्मेशन फिर क्या हुआ, सीपीयू को मिला, और सीपीयू ने प्रोसेस एक्स को दिया कि नाउ यू विल बी इंटरप्टेड. ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 4 सेकंड पे ये इंटरप्शन दिया था, मैं एक सिनेरियो ले रहा हूं, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका 4 सेकंड पे क्या हुआ, इंटरप्ट ये जनरेट हो गया. तो ऐसा नहीं है कि 4 ही सेकंड पे क्या करेगा, इसको सिस्टम क्या करेगा, सीपीयू बाहर निकाल देगा. अगर सिस्टम, अगर कोई प्रोसेस है जो कि बना हुआ है सिस्टम में, इट मींस कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सीपीयू, तो वो अगर कोई इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन के वेरियस फेजेस होते हैं स्टूडेंट, लाइक आपका फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, स्टोर होता है. तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है सीपीयू में रिलेटेड विथ प्रोसेस एक्स, तो जब तक कि ये करंटली रनिंग इंस्ट्रक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन को भी वेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से इंटरप्ट सर्विस रूटीन को भी till the execution of currently running instruction of the process which is
currently residing in the CPU will not finish till the process Y will not get entertained by the CPU. Did you got this concept? Yes, student, I'm asking you, did you got this concept about interrupt? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I'm providing you the link for today's attendance. And after completion of this, आप सभी एगर होंगे कि सर ये स्लाइड मिल जाए आप लोग को. Yes, Yes, sir. Pappu, I will provide you the this slide also, and tomorrow we will give you a detail about the interrupt also. I have provided you link for today's attendance. Kindly fill it up. And again, I am informing you that if you will come after 8:10 from tomorrow to join the classes, I will not permit you, because आपका रिदम, ये रिदम भी ब्रेक होता है मेरा कि आपको ज्वाइन करता रहूं मैं, और हमको रोज ये इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि आप ज्वाइन कीजिए क्लास के लिए. इट इज नॉट गुड फॉर मी और योर क्लासमेट्स. जो अपना काम सही से कर रहे हैं उनको परेशान मत कीजिए. आपका काम है क्लासेस को टाइम पे ज्वाइन करना, ठीक है. सो आप 8:10 के पहले क्लास को ज्वाइन करें. 8:10 के बाद आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन द क्लासेस. एंड अगेन आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन दैट आपका एटलीस्ट 75% अटेंडेंस होना चाहिए टू give the mid semester examination of operating system और अदर थिंग्स रिलेटेड विथ ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि आपको मैं परमिट नहीं करूंगा, अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको यू विल नॉट अलाउड टू सिट इन द प्रैक्टिकल ऑल्सो. आपको फाइनल वाइवा में भी मैं बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपका इवन हॉलीडे में भी वर्क करता हूं आपके लिए. जो भी वर्क होता है, चाहे वो स्लाइड प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपका आगे आपको क्या पढ़ाना हो, स्टडी करना हो, आपके लिए वीडियोस अपलोड करना हो, आपको इंफॉर्मेशन कुछ भी शेयर करना हो, असाइनमेंट प्रिपरेशन करना हो, दिस काइंड ऑफ वर्क आई डू इवन इन द हॉलीडे, और इवन आफ्टर आपका क्लास नहीं भी चलते रहता है तब भी मैं ये इंफॉर्मेशन, ये सब काम करता रहता हूँ, ठीक है. So it is your responsibility to join the classes on time, and you must have 75% attendance. ठीक है. So till now some of the students are very good. मैंने कंटिन्यूसली देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं. स्मृति हो गई, पप्पू हो गया, आपका शुभम हो गया, आशीष हो गया. कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो रेगुलर क्लास भी कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी कर रहे हैं, असाइनमेंट भी कर रहे हैं. बट आपका 60 का स्ट्रेंथ है और 14-15 लोग ही क्लास अटेंड कर रहे हैं. इट मींस कि सम आर डिफॉल्टर एंड दे विल हैवीली पनिश्ड. सो थैंक यू स्टूडेंट. If you have any kind of question, then we have 1 minute time. You can ask. Okay, okay, Shubham. Thank you. Have a nice day.